Friends, so we are on the cusp of the Diwali festival. Let me wish you all a very happy Dhanteras. Now, just to tell you a couple of things, two things only I'll discuss here. One is that there is a concept of a Gujarati New Year, a Samvat year, which starts from the Diwali of last year, say 2022, 21 to 22 this year. And then you have a new Samvat year which starts from this Diwali and goes up to the next year, which is 2023. Now, in this world of finance, there is a lot of index management which is done by large players, the mutual funds, institutional investors. Regarding falls on the 20 and 21, if you see on the 20, the whole day was negative Thursday. Only in the last 40 minutes, we saw some buying coming in suddenly. Nifty edged up 50 points, barely closing in the green. Whole day was red. 21, Friday, it was in a small range of just 20 points whole day. And in the afternoon, we saw huge sell-off taking place. Nifty lost 160 points in that time frame. Last half an hour, once again, institutional investors managed to show it just 10 points up in the Nifty, managed to show in the green. These are not really true levels. They are managed because there are lots of players who like to show a comparison of one Samvat year to another Samvat year. So they like to show it is closing in the green. They like to show that on the cusp of the Diwalis, the holiday, when there's going to be a Muhurat trading on 6:15 to 7:15, and we'll be having some predictions for the Muhurat trading as well shortly. So in this scenario, one has to understand that 20th we had a whole day negative, 21st a huge sell-off in the afternoon, covered up just 20 minutes at the end, half an hour in the end, just to make it look green, is something that keeps happening not only in India but in other parts of the world as well. In the US, we had an options expiration on Friday, and this added immense pressure because there are institutional investors who try to sway it. The less I say about it, the better, but I think you can understand the message. So, yes, huge downfall came in the afternoon in the Nifty as I had predicted on about the 21st, but there were some institutional investors who tried to make it just barely. You see, it is hardly 10 points in the green. Anyway, we go forward to the new Samvat year, and among the things from this Samvat year to the next, I see is I still hold my prediction of the 10 best trading days of 2022 are just coming. If they are placed and positioned properly, and this time there will not be any options expiration, this will not be any Samvat year closing, this time it will be open to the world to do your bit, and you can place trades very well positioned, and we'll tell you in advance. Please do join Premium Plus. Number to get in touch 982-086-1044. For the US markets, you can join Prime or Prime Plus. The number is the same. You can also email us at globalmoneyinvestor@gmail.com. तो भाई और बहनों, कई बार बड़े प्लेयर्स एक पोजीशन ऐसे बनाते हैं कि मार्केट को दिखाते हैं कि इस साल संवत ईयर, लास्ट ईयर से इस संवत ईयर तक कहाँ तक मार्केट बढ़ा तो नहीं, इस वक्त तो घटाई निफ्टी, लेकिन फिर भी वो ग्रीन में क्लोज कराने की कोशिश करते हैं एक साइकोलॉजिकल लेवल बना के। अगर आपने 20 तारीख का देखा ट्रेडिंग, तो पूरा दिन नेगेटिव रहा। लास्ट 40 मिनट में उन्होंने बढ़ाया क्योंकि ऑप्शंस एक्सपिरेशन था, वो 17,500 के लेवल को डिफेंड करना चाहते थे क्योंकि बहुत सारे पोजीशंस उस लेवल पे थी, लॉन्ग पोजीशंस। तो ये दिखा गया कि लास्ट में ही बढ़ाया गया। 21 तारीख को आप देखें तो 10 पूरा दिन एक 20 पॉइंट के अंदर खेले, दिन को बड़ी गिरावट आई जैसे मैंने प्रेडिक्ट किया था। फिर भी लास्ट में उन्होंने कोशिश करके एक 10 पॉइंट प्लस करके दिखाया।
संवत ईयर की क्लोजिंग वो अच्छी दिखाना चाहते थे। बैरली पूरा उस वक्त पूरे विश्व बाजार 20 तारीख को 21 तारीख को सब नेगेटिव थे, हमारा मार्केट पॉजिटिव में क्लोज करके दिखाया। तो ये यहाँ पे भारत के ही नहीं बल्कि विश्व के दूसरे बाज़ारों में भी, अमेरिका के बाज़ारों में भी ऑप्शंस एक्सप्रेशन कल था, वहाँ भी अच्छी तरह से मैनेज करके और ट्विस्ट किया कि अच्छी तरह से ऊपर दिखाया जाए। ऐसा नेचुरल ट्रेडिंग होता नहीं है, लेकिन फिर भी इसका इम्पैक्ट आ जाता है मार्केट पे। जो ये संवत वर्ष जो शुरू हो रहा है यहाँ से लेके अगर आप नेक्स्ट ईयर को देखें तो बहुत कुछ हलचल होने वाली है। लेकिन सबसे मुख्य इस जो 2 महीने बचे हैं अभी, अब तक मैंने लास्ट में भी कहा था कि एक 10 सबसे बड़े ट्रेडिंग डेज इस वर्ष के अभी तक आने बाकी हैं और वो जल्द आ रहे हैं। ठीक है, तो मॉरल ट्रेडिंग तो ठीक रहेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो 10 बड़े दिन आने वाले हैं तो ये आने ही हैं। और इन दिनों को काफ़ी विश्व स्तर पे काफ़ी इम्पैक्ट आएगा। मेरे हिसाब से इस वक्त कोई भी ऑप्शंस एक्सप्रेशन उन दिनों में नहीं रहेगा, ना कोई संवत ईयर का क्लोजिंग आएगा। और बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भले भी बहुत ही कोशिश करें, लेकिन इस वक्त इंडेक्स मैनेजमेंट करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि ये किसी भी वक्त के इंडेक्स के हिसाब से नहीं चलेगा। इस वक्त जो है विश्व में बहुत सारी गतिविधियां हैं, उन सबका मिलजुल के इम्पैक्ट आने वाला है। तो सबसे 10 बड़े ट्रेडिंग डे अभी आ रहे हैं। और एनीवे आप सब लोगों को धनतेरस की बहुत सारी शुभकामनाएं। दिवाली के दिन तो नहीं आएगा, ये चिंता ना करिए, आराम से लक्ष्मी पूजन करिए। दिवाली का ये जो है महोत्सव, इसको अच्छी तरह से अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ भक्तिपूर्वक संपन्न करें। लेकिन ये जो आएंगे वो काफ़ी करेंगे। और मैं एक चीज़ लास्ट कहना चाहता था कि कई लोग मेरी टीम ने बताया, यूट्यूब पे कहते रहते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए आप, क्योंकि दिवाली में अब क्या लिया जाए, कौन से स्टॉक्स इस संवत ईयर को टॉप पिक्स ऑफ दिस ईयर लगा देते हैं। देखो ऐसा ये हाँ देखा जाता है कि 10 वर्ष का अगर आप एवरेज ले तो 14% से ज़्यादा स्टॉक्स रिटर्न कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन इस वक्त स्थिति अलग है। अगर लास्ट संवत ईयर से इस संवत ईयर तक कोई पॉजिटिव इफेक्ट निफ्टी पे नहीं दिखा, तो नेक्स्ट ईयर में भी आपको देखना होगा कि कहाँ तक जाएगा मार्केट। क्या यहाँ पे एक बहुत बड़ी क्रैश आने वाली है ये संवत ईयर से दूसरे संवत ईयर तक जाने के लिए? स्टॉक स्पेसिफिक तो अच्छे चलेंगी, जो जैसे कि कंपनियां जो लॉस में थी वो प्रॉफिट में आ रही हैं, तो उनको तो मार्केट रिवार्ड करेगा। लेकिन पूरा निफ्टी और उसका इंडेक्स जो है वो सारा नहीं चलेगा, पूरा नैस्डैक नहीं चलेगा, पूरा डाउ जोन्स नहीं चलेगा। ठीक है, तो यहाँ से लेके दूसरे वर्ष के अंत तक मैं अगर देखूँ तो जैसे मैंने कहा 10 ट्रेडिंग डे बहुत अच्छे आ रहे हैं इस वर्ष। चलो 10 नहीं हो, 1-2 कम ले लीजिए, भगवान तो नहीं हो एक एक बता पाऊंगा, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छे ट्रेडिंग डेज रहेंगे। 8 दिन मिनिमम अच्छे बहुत बढ़िया आएंगे। मेरे हिसाब से तो 10 रहेंगे, लेकिन फिर भी जस्ट टू बी कंजर्वेटिव सेफ साइड पे लेने के लिए। और उसके बाद नेक्स्ट ईयर तो बहुत ही ज़बरदस्त मैंने एक प्रेडिक्शन दिया है ग्लोबल रिसेशन का। अब उसका इम्पैक्ट कब आएगा वो भी हम आपको सब बताएंगे। तो आगे मार्केट की काफ़ी गतिविधियाँ रहेंगी इस वर्ष का भी। आप नहीं समझिए कि पूरा है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो मैं नहीं एडवाइस करूं, ये टाइम सही नहीं है इन्वेस्ट करने का। ठीक है, शायद ऐसा और कोई भी विशेषज्ञ आपको नहीं कहेगा, लेकिन आई डोंट थिंक दिस इज़ अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट फॉर द लॉन्ग टर्म। शॉर्ट एंड मीडियम टर्म वन कैन दैट ऑल्सो इन सम स्टॉक स्पेसिफिक्स विच आर एक्सपेक्टेड टू डू वेल। हर स्क्रिप्ट में नहीं करिए इन्वेस्ट, लॉन्ग टर्म के लिए इस वक्त सही नहीं है। कब होगा तो आपसे वार्तालाप करते रहेंगे, बताएंगे आपको कि कब बॉटम आउट हो रहा है मार्केट। लोग कहते हैं कोई बता नहीं सकते, अरे भाई ऐसी अगर नेगेटिव थिंकिंग रखोगे तो कुछ नहीं होगा। कम से कम ये दिवाली का है टाइम, धनतेरस का है, आप ज़रा ऑप्टिमिस्टिक हो जाइए, पॉजिटिव हो जाइए, सब आपको बताएंगे। और जिनको इच्छा है, कोई ज़बरदस्ती किसी से नहीं है, तो प्रीमियम प्लस ज्वाइन करिए। संपर्क करने का नंबर 9820861044 और ईमेल भी कर सकते हैं globalmoneyinvestor@gmail.com। तो कैसे मार्केट रहेगा आपको बताते रहेंगे, थोड़ा सा वैल्यू एडेड ज़्यादा है।
बाकी तो आप लोगों के साथ यूट्यूब पे हम हाजिर रहते ही हैं आप लोगों की सेवा के लिए। और आज के लिए आपका धनतेरस का दिन सब लोगों के लिए शुभ मंगल लेके आए और सोना और चांदी से भर दे आपका खजाना। ईश्वर से प्रार्थना, माता लक्ष्मी से। जय हिंद।